You are absolutely right in ideal world. नहीं दोनों See, एक हाँ because the reason is, I'll tell you. Today, Prime Minister says, and we Indian media says, we are Vishwa Guru. We never said, now we have changed the term. We have Vish Bandhu. So many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come. तो अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन उसमें क्या नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। As a military man, I feel we have to be little proactive. You know, Zelensky, his ambassador has been always telling कि India is the best country suited to finish off this war. उसने ये नहीं बोला कि आप उसकी मदद करो या उसकी मदद करो. If we are talking about dialogue and diplomacy, and even in that Kazan summit, our prime minister told Putin की dialogue diplomacy. देखो, dialogue diplomacy बोलने में अच्छा लगता है. Why we are not doing it? आप मध्यस्थता तो नहीं करो ना. Have a separate talk with him. Have यहाँ एम्बेसडर है, उनको बुलाओ, साली बातचीत करो, कुछ तो करो ना. देखो, वी हैव टू बी, आई पर्सनली फील, आज हमारी इंटरनेशनल इमेज, you are absolutely right in ideal world. नहीं दोनों एक हाँ Because the reason is, I'll tell you why. सर आपके पॉइंट में अगर ट्रम्प को ऐड कर दिया जाए ना तो असल में ट्रम्प का इशू जो है ना वो ऐसा है No, actually he is going on to Biden. So Biden वाले नाम है तो Trump is out of equation at this moment. उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको. देखिए, जब हमारी प्रॉब्लम हुई, पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम है हमारी, who is standing with us? Who is standing? With us. Actually, no one. So why do I go and help Ukraine? It's not helping. See, to solve the problems, because then we have to Helping. ultimately, जब हम कहेंगे ये, जब भी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जो ये पॉइंट बताया है कि when we are talking off the record, in the sense without not in public eye, we are advising, but Putin has his own agenda. He is not ready to budge, whatever we say. And उससे क्या होगा, ज़्यादा हम उसको अनॉय करेंगे, वो तेल देना बंद कर देता हमें. पता नहीं. Naturally, no. नहीं, आप मेरे को ये बताइए, उससे हमें, अच्छा आप, okay, let me put it other way, हमें क्या फायदा होगा? नहीं, Because it's my national, सबसे see, बड़ी ultimately चीज़ मेरा national interest आप क्या मेरे है? को ये बोलिए, today Prime Minister says and we Indian media says we are Vishwa Guru. We never said, now we have changed the term. We have Vish Bandhu. देखो, एक होता है चुपचाप बैठे रहो, एक होता है चुपचाप बैठे रहो, बस चल रही है. No, हम वही मैं कह रहा, बैठे नहीं हैं. वही आप बैठना इस बात को लेकर चल रहे हैं कि हम पब्लिक मीडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं. ये बैठना नहीं सर, लेकिन परसेप्शन तो मैटर Yeah, करता है doesn't ना. matter. देखो आपकी नहीं See, perception, diplomacy and perception, they are two unrelated. We are not working for the perception. तो सर एक बात बताइए, जब हम Okay, I'll just raise a question. I was in Afghanistan. I'll ask you now. जी. India and Afghanistan has been the traditional friends historically, culturally and everything, and they love us the most. Yes. Okay. Right. मैं वहाँ पर था. I did not see India doing any proactive thing. You know what we did? Salma Dam बना दिया, Parliament बना दिया. The people are happy with us. You know what they used to tell me? Afghani generals and their people, including Taliban, some of them. He said, General साहब, strategy सीखनी है ना, पाकिस्तान से सीखो. आप लोग ना हाँ में ना जवाब देते हो ना में. I'll tell you, I got so many proposals from Afghans. I'm aware. So many. I'm aware. I used to come and get those delegations, Yeah. meet the top leadership. तो यहाँ जब बातचीत होती थी ना, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, we'ल give you the whole plan. Yeah. 6 महीने हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं देने. तो एक दिन एक बंदे ने इतना मेरे को ना ऐसे बोला, बोलते जनरल साहब पाकिस्तान से सीखो, साले वो एक्शन तो लेते हैं, स्ट्रेटेजी आपके देश में ना स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है. एंड आई एक्चुअली एग्री. यू टेल मी टुडे व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कल्चर इन आवर कंट्री? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक कल्चर? ये जो आपका अपने हित बचाना, आपका ब्रह्मा चेलेनी है ना, उसका उसका पढ़ो. ही इज अ ग्रेट थिंक टैंक, मतलब अच्छे कोटेशन वो आते हैं उनके. He has stated India is bereft of strategic culture. आप अपनी मीडिया की न्यूज़ देखो, आप कुछ देखो. You know, we have to today focus on nation. We are focusing on religion. We are focusing on politics, internal politics. How much we are focusing on the आपने आज बोला कि आपका मेन फोकस है मतलब ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करना. वी मे बी डूइंग ऑन टीवी,
But how much of us is being discussed? You see in the parliament discussions, we have to have एक strategic culture होना चाहिए. We have to be a country of action. You cannot be laid back. Today आप दुबई में जाइए, कहीं जाइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दोनों का पूछिए हाउ डू यू व्यू इंडिया, वो एक ही चीज़ बोलेंगे आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, बट आप तो कुछ करते तो हो नहीं, तो कुछ तो करना चाहिए. अच्छा, अब मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन रखता हूँ, फिर आप, है ना, अगर आपने एक पक्ष ले लिया, क्योंकि देखिए जब भी वो देखो अगेन यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान का. नो लेट मी कंप्लीट दैट एग्जांपल. हाँ प्लीज. Who should have taken the lead in Afghanistan? We. When they were talking about peace and transition government, कि finally अफगान की governance का क्या होगा. टर्की में इस्तांबुल में talks हो रहे थे, they were leading it. दोहा talks हुए, सारी कंट्री थी, हम जाते थे, अटेंड करते थे, हमारा कौन लेवल भी जाता था, आई थिंक एक जेस जाता था. You see the other countries were taking lead. India was just a attendee. We are not, वहाँ पर फाइनली क्या हुआ टुडे, तालिबान केम. मेरे को वहाँ लोग बोलते थे कि तालिबान को एक रियलिटी है, उनको लेना पड़ेगा गवर्नेंस में. एंड देवर टॉक्स दैट टाइम कि मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तालिबान को दी जाएगी. अशरफ गानी एंड ऑल वर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय बड़ी सम अदर कंट्री. ठीक है. सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हम बातचीत करते हैं. मैं अगेन बोल रहा हूँ, हम ना किसी की मदद कर रहे हैं ना किसी. हाउ डू आई अंडरस्टैंड यू टुडे? बाय टॉकिंग ना. मैं घर में बैठे तो आई कांट ड्रीम ऑफ यू. सो आई एम टेलिंग यू आई टॉक टू यू, आई टॉक टू हिम, दैट्स हाउ आई नो यू ना. एंड देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि भैया आफ्टर माई टॉक्स विद यू ये निकल के आ रहा है, ये हो रहा है. देन आई कैन थिंक ऑफ टेलिंग देम कि यार दिस इज देयर व्यू. मध्यस्थता ये हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, मैं इसका पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, इसका पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ. सो वी हैव टू बी सीन टुडे. सर भी यही बोल रहे हैं कि हम वो कर रहे हैं लेकिन उसको दिखा नहीं रहे हैं. नहीं, मेरे को नहीं लगता हम कर रहे आपका हैं. जो आप मेरे को ये बताइए, आप हैव एन आंसर फॉर योर अफगानिस्तान. छाबर पोर्ट जनरल साहब, आज हमने क्यों इन्वेस्टमेंट हटा दी? जनरल साहब, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान जो आप बोल रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट, एंड देयर वर रीजंस why we were responding the way we were responding. जैसे सर नहीं मतलब एक्चुअली अब तो सर जो भी है वो तालिबान के कंट्रोल में है. और नहीं, उसके रीजंस थे. अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ना. रिकॉर्डिंग ऑन है. आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी है, और ये वाली जो बात बोल रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड ही होगी. See, the thing was that USA was not willing to give us space. किसमें? अफगानिस्तान में. No, And this is a fact. United and States, because the Pakistan was not willing to allow us any say in the matter, and USA was taking their help. सर ये मैं दोनों में एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है. सर का कहना जो है ना, मैं थोड़ा और आसान भाषा में इसको रखने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि मैं कन्विंस हो रहा हूँ. भाई आपको बात करने से कौन रोक रहा है? आप बात करो ना. आप यूएसए से भी बात करो, आप अफगानिस्तान से भी बात करो, बात करके एक दूसरे से. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सर की कोई बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं उसको फिर से हल्का सा रिफाइन करके कि सर इसमें क्या दिक्कत है. आप वो भी जब लीड नहीं ले रहे हो, आप ऑब्जर्वर बन के बैठ जा रहे हो. नहीं, जब अफगानिस्तान का एग्जाम्पल अगेन, ऐसा नहीं कि हम नहीं बात नहीं कर रहे थे. अफगानिस्तान से जो इशू आ रहे थे, प्रपोजल आ रहे थे, वो कंसिडर किए जा रहे थे एट द लेवल, अप्रोप्रिएट लेवल, पुट दिस वर्ड. बट हम खुद अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी भी और देशों के साथ में अंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि उनके साथ में मिलकर चलते हैं. तो बहुत सारी चीज़ कई बार होती हैं कि जो लॉजिकल है, मोस्ट सीम्स भी कि एकदम बिल्कुल सही है, ये करना चाहिए, तो वो हम कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे कंसिडरेशन जो भी अनरिलेटेड हो सकते हैं वो प्ले कर रहे होते हैं. No, I will tell you, since we are talking, you said कि America never gave us space. I was called by the US 4-star general, who was the boss of the ISF, and उनके साथ बैठे थे French 3-star general, who was the ISF का deputy. He later became the chief of the French army. He said, General, we would like to have a visit by the ISF people. We will like to give a briefing to Indian top people, including your generals, on
what we are doing and what we expect of India. जी जी जी. Okay. Proper मेरे को बताया. My ambassador, Mr. Amar Sinha, was in concurrence. Very good. Proposal came to India. I am talking about the year 2012 or 2013. जी. We never got a response from the Yeah, country. yeah. And you know what was the proposal? वो अपने जहाज से आएंगे. That officer, the chief of staff of France, 3-star general, and the top generals used to meet General Kiani literally हर तीसरे दिन मिलते थे. वो कियानी की इनसाइड जानते थे. मेरे को इनफॉर्मली वो बताते थे. तो वो बोल रहे थे कि हम अपने जहाज में आएंगे, अपने होटल में रहेंगे, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये विजिट वो दे दो, हम आपको सिर्फ बताएंगे कि यहाँ सिचुएशन क्या है और इंडिया कहाँ जो आप लोग कर रहे हो उसमें हम आपको भी थोड़ा बता सकते हैं कि आप और क्या कर सकते हो. इसमें क्या गड़बड़ी थी? पीएमओ अप्रूव्ड इट, सब कुछ हो गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ. नहीं. उसके बाद वो, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकता हूँ. समवेयर सम joint secretary in the MOD who was not even having that knowledge of this. She was from the postal department. She just wrote कि नहीं, this should not go through. We strategic culture. और हमारा DG Defense Intelligence Agency, everyone was on board. Now they were to come here. अब जब आप आओगे नहीं तो आपको घास कौन देगा? सीधी बात है. सो इंडिया की आज रेलेवेंस देखे, वी आर अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं. वी आर अ मिलिट्री ताकत इन द वर्ल्ड. वी हैव गॉट अ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप. क्या नहीं है आपके पास? आज हमारा हर इलेक्शन में मैंडेट बढ़ता जा रहा है. तो आपको तीन जब बड़े पावर्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, आपके पास इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, तो why can't today we be seen in this world to be making some impact? That is my question. अब ये IMEC कॉरिडोर पे आज की तारीख में क्या हमने स्टेटमेंट दिया है? दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न टू अस. दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न. अब ये जो जनरल साहब के एक्सपीरियंस को आंसर आप ही करेंगे. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. अब MOD का जो स्पेसिफिक केस है मैं उसमें तो कमेंट नहीं कर सकता. हाँ, because that was an individual personality. Yeah. So, but coming to foreign policy or strategic interest, foreign policy is ultimately extension of the national interest. What foreign policy is, क्या है ये ultimately? ये जो हमारे objectives हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं. बिल्कुल, वो तो सभी कर रहे हैं. तो हमारे नेशनल ऑब्जेक्टिव इस वक्त, अगर मैं स्पेसिफिक, अगर कमिंग बैक टू द डिस्कशन जो हो रहा है हमारे गल्फ में लूँ, हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त. एक तो है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं उनको सेफ्टी हो. बिल्कुल. दूसरा है कि हमें कोशिश ये करनी है क्योंकि ऑयल और गैस हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अब सबको मालूम है, उसको हम कैसे भारत में लाएं, क्योंकि जो अभी चोक हो रहा है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें मुश्किल आ रही है, जैसा कि हम सबको मालूम ही है. फॉर्चुनेटली अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं क्योंकि हमने पहले से रिजर्व भी हैं, वो भी है, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है. तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारे वहाँ रेमिटेंस हमारे यहाँ आती है, और सबसे बड़ी रेमिटेंस आएगा. बिल्कुल. चौथा एक्सपोर्ट, जो हम बात नहीं, एक्सपोर्ट्स, स्टेट ऑफ हॉर्मुज. अब हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें? बाय बिकमिंग एक्टिव और बाय टॉकिंग टू ऑल साइड टू एंश्योर कि हमारा जो ये 4 चीजें हैं हमारी वो चलती रहे. बाय टॉकिंग, वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो टॉक तो हो रही है, टॉक तो हो रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए. अब मैं एक आपको हिस्टोरिकल चीज बताता हूँ जी. लेट्स वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अशोका एम्पायर इन 3rd century BC, मौर्य गुप्ता एम्पायर, वी हैड ट्रेड बाय लैंड रूट फ्रॉम ये अफगानिस्तान, ईरान, राइट अप टू यूरोप, सिल्क रूट के थ्रू. एंड वी ऑल्सो हैड ट्रेड वाया द सी रूट. उस जमाने में 3rd century BC यही रूट था अरेबियन पेनिनसुला से. और उस जमाने में स्यूज कनाल तो थी नहीं, तो कैमल्स के थ्रू जाता था एंड वी वर ट्रेडिंग राइट अप टू यूरोप. कैसे हमने किया? कैसे किया? वी हैड अ ह्यूज नेवी.
वी हैड अ ह्यूज विजन, तो IMEC कॉरिडोर भी उसी दिशा पे है, हमारा विजन अच्छा है। पर आज मैं बोलना चाहूँगा, आप ये इंडिया का मैप देखिए यहाँ जो लगा हुआ है आपके ये, आज इंडिया वो कंट्री है जिसका पूरे इंडियन ओशन में ऐसा प्रोजेक्शन है कि पूरा आपके इधर इंडियन ओशन जो अरेबियन सी पे डोमिनेंस है, पूरा साउथ में डोमिनेंस है, और आपके पूरा बे ऑफ बंगाल में डोमिनेंस है। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, चोक पॉइंट्स, मलक्का, सुंदा, बाबल मंदेब, गल्फ ऑफ ये क्या नाम है, स्टेट ऑफ हुरमुज, ओके, स्टेट ऑफ मेडागास्कर, and further down to Cape of Good Hope. They are all the in routes and oblique exits. आज मैंने चाइना का आपको वर्णन किया था, चाइना की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का। 40% ट्रेड डिपेंड होता है। हमारी क्या है कि ये जो एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये मतलब पूरा वाटर पे इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन पे, हमने इस स्ट्रेंथ को एक्शन में कैपिटलाइज करना है। एक्शन मतलब लड़ाई में नहीं, वी हैव टू। तो एक मिनट, हाँ मैं अभी इसको बताता हूँ। आज हमारी, अगर हमने ये IMEC कॉरिडोर करना है, इसके लिए भी रिक्वायर ह्यूज ब्लू वाटर नेवी फॉर इंडिया। इफ वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर सुएज कनाल, अभी हम अंडमान में ये निकोबार में बेस बना रहे हैं, वी हैव टू ऑब्वियसली हैव अ ह्यूज नेवल। आप विजयन एम्पायर में देखिए, हमारा जो ये चोला डायनेस्टी एम्पायर था 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी BC, वी हैड ह्यूज ट्रेड, एंड हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक था? मैंने अभी वेस्ट का बोला, अफगानिस्तान तक था, ईरान तक था इन्फ्लुएंस, हमारे लोग पहुँचे हुए थे। आज आप यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट एशिया में आपकी चोला डायनेस्टी में पूरा इंडोनेशिया, ये वो, वहाँ पर हमारा इन्फ्लुएंस था, कल्चरल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सब कुछ। सो ये स्टेट्स तभी भी चल रहे थे, बट इंडिया के पास नेवी थी, मिलिट्री वेरवदा था, डिप्लोमेसी थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी। आज सारी चीज़ें वो हैं, वी हैव इट, तो उसको हमको कैपिटलाइज करना चाहिए एडवांटेज। अगर हम लुक ईस्ट एशिया की बात करते हैं और आपकी ये IMEC कॉरिडोर की बात करते हैं, तो उसके लिए अभी से हमको स्पेड वर्क करना चाहिए। एंड स्पेड वर्क मतलब अभी से हमने अपनी तरफ तो हम बना रहे हैं, चलो कांडला में पोर्ट है, या मुंद्रा में पोर्ट है, या बॉम्बे में उसको हम वो कर रहे हैं। वी हैव टू नाउ स्टार्ट लिंकिंग अप विद दीज कंट्रीज, एंड देयरफॉर माय थिंग इज, ईरान को आप बोलिए कि यार हमारा ये कॉरिडोर जा रहा है, यू विल आल्सो बेनिफिट, दिस इज टॉकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप मध्यस्थता करिए। इसमें पॉइंट ये है कि आप ईरान को जैसे ऑन बोर्ड लेते हो, उधर यूएस नाराज हो जाता है, इजराइल यूएस से देखो हमारा बेनिफिट ऑफर कर ही नहीं सकते। हमारा जनरल साहब एक शॉर्ट आंसर मैं दूंगा आपको, एक है। शॉर्ट आंसर मैं दूंगा आपको। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन आप जो हमारा डॉक्ट्रिन है सागर या महासागर और महासागर, एक्चुअली वही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें। इस डॉक्ट्रिन के द्वारा हम वही जो आप कह रहे हैं विजन, उसी को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। मॉरिशस में हम हैं, सेशल्स में हम हैं, वी हैव अ सॉफ्ट प्रेजेंस, और हम डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पर जो हमारी नेवी को जो चाहिए सपोर्ट, एंड वी आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। जब भी कहीं समस्या होती है इस रीजन में जो आप कह रहे हैं, भारत वहाँ पे जाता है, पायरेसी हो या कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो, इंडिया इज द वन। और हम जो जिस तरीके से कर रहे हैं काम, आप जब यहाँ पर ये हूतीस की प्रॉब्लम हुई थी, तो भारत एक अकेला देश था जो सबसे बात कर रहा था, और देश जो डिफरेंट इंक्लूडिंग यूएसए के सिटीजन्स को हम निकाल पाए थे। क्यों? हम वहाँ लड़ाई रुकवाते थे, हमें वो विंडो दी जाती थी। अब आपने एक अच्छा सेंटेंस बोल दिया, भारत वो देश था जो सबसे बात कर रहा था। नहीं, अभी भी कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अभी भी कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि तब भी यह इशू उठ रहा था कि हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि सबसे बात करते हैं, हम सऊदी अरब से भी बात करते थे, जो हूती उनसे भी बात करते थे, और हमें विंडो दी जाती थी कि तुम अपने सिटीजन्स को या लोगों को जो हमारे जहाज आएगा वहाँ से इवैक्यूएट कर सके। वो क्यों पॉसिबल था? क्योंकि क्वाइट डिप्लोमेसी, जो मैं शुरू से मैं पॉइंट बना रहा हूँ। हमें डिप्लोमेसी पे रीथिंक करने की जरूरत है। चलो हम इस बात को इस तरह से कहते हैं, आपकी बात सही है कि हम क्वाइट डिप्लोमेसी पे फोकस कर रहे थे, लेकिन क्या हमें डिप्लोमेसी पे रीथिंक करने की जरूरत है? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वाइट डिप्लोमेसी की जगह अब लाउड डिप्लोमेसी का जमाना आ गया है।
ट्रंप ने पिछले 1.5-2 साल में ऐसा माहौल बना दिया कि डिप्लोमेसी मतलब ट्रुथ सोशल पर क्या डाला गया, दैट इज डिप्लोमेसी। वो कोई भी बात अगर किसी जापान के प्रधानमंत्री को बिठा के कह रहे हैं कि सुनो तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा पर्ल हार्बर को सरप्राइज करना, वो किसी भी देश को बुला करके, साउथ अफ्रीका के बिठा करके रामफोसा को कह दे रहे हैं कि आप तो इस तरह की हरकत करते हैं। मतलब डिप्लोमेसी जो कभी बिहाइंड द सीन जो भारत करता आया है और पुराने समय में जो होती आ रही थी, अचानक 1.5 साल से डिप्लोमेसी अब बदल गई है। और डिप्लोमेसी बदली है, भारत बदले या नहीं बदले ये अपना हमारा एक कन्वेंशनल तरीका हो सकता है। सवाल वहीं खड़ा है, आप करते हुए दिख क्यों नहीं रहे हैं? अल्टीमेटली आपने शुरुआत में कहा कि नेशनल इंटरेस्ट ही है जो हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट ये चाहता है कि हमसे ज्यादा एज इस समय पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि जिस डिप्लोमेसी को आज तक हम बहुत गौरवान्वित होकर लेते आ रहे थे कि भारत की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि हम अमेरिका को भी साथ गए, रूस को भी साथ गए, तेल लेकर के अपना खर्च चला गए, हम उसके बावजूद आज फिर वहीं आकर खड़े हो गए कि आपको हाशिए पर पाकिस्तान की वजह से रख दिया गया, आप क्यों पीछे हटे? देखिए बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करना शुरू करें अपने आप तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा सवाल मेरे को ये बेमानी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था उसमें कहा कि उसके अपने ऑब्जेक्टिव हैं और उसको सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रिसिपिएंट है उसका जो वो चाहता है करवाना, और पाकिस्तान जैसे अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उसने मध्यस्थता करने की आदत है, अफगानिस्तान में की, चीन के लिए की, यूएस चीन के बीच में की, लेकिन उस सब में उन्होंने किया क्या? अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, ये प्रेसिडेंट अयूब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो यूएस से पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा था, आई एम यूजिंग द वर्ड घास नहीं डाल रहा था, और उनको बिल्कुल अवॉइड किया जाता था। तो जो उनके एक जनरल साहब जो थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल थे, वो बाद में अयूब बने, उन्होंने कहा कि मेरी सेना आपके लिए अवेलेबल है और केवल आप मुझे खर्चा दे दीजिए। तो वहाँ से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। तो पाकिस्तान ने हमेशा अपने आप को इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि दूसरे देश के डिस्पोजल पर हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वो करूँगा। उस तरह से वो डिप्लोमेसी उसने अपनी चलाई है। चीन के मामले में वही किया उन्होंने। जब मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूँगा, वो इसी में आप कंटिन्यू करिएगा। चला तो हम भी वैसे ही रहना सर। आज आप चाबहार पोर्ट पर साहब, जो अभी जनरल साहब बात उठा रहे थे कि वहाँ पर आप कोई बजट नहीं निकालते, क्यों नहीं निकालते? काट सा खड़ा है साहब। अमेरिका ने कह रखा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट, अगर आपने पैसा लगाया तो मैं आप पर प्रतिबंध लगा दूंगा। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम? अमेरिका के अकॉर्डिंग। अमेरिका बोलता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? अमेरिका बोलता है। आप प्रतिबंध तो अमेरिका के मान रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने कहा कि मेरी सेना का इस्तेमाल कर लो। टेक्निकली तो आप पूरा देश ही इस्तेमाल करने दे रहे हो सर। नहीं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, अच्छा आप मेरे को अभी काउंटर में कहूँगा जी प्लीज, कि अगर हम कहते हैं कि नहीं छाबार में हम पैसा लगाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? सैंक्शन लगेंगे, ठीक है। और हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है? हम डॉलर पे कितने डिपेंडेंट हैं? $40 बिलियन साल का कमा रहे हैं हम उनसे व्यापार करके। कमाते हैं, लेकिन टोटल ट्रेड हमारा $140 बिलियन, $140 बिलियन, जो कि सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा, हमारी सारी ट्रेडिंग किस में होती है? यूएस डॉलर में। तो वो अगर आपको पर सैंक्शन आपके ऊपर लगी तो आपकी इकोनॉमी को क्या होगा? वही तो बोल रहा हूं तो कि वो आपको सैंक्शन से डरा के भी तो आप का इस्तेमाल कर रहा है, और वो कह रहा है मेरा इस्तेमाल कर लो। दोनों में फर्क ही तो इतना है, आप डर के काम कर रहे हो और वो खुशी से। लेकिन हम उससे, आपकी बात सही है कि हम जो है हमें करना पड़ रहा है, हाँ। एक तरीके से हम, लेकिन हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स हमने अपने रीजन से उसकी वजह से किया, लेकिन हाँ मैं एक बात मानता हूँ कि हमें उसको फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से हमारी ये टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इसमें गलती हमारी भी है कि हमने यूएस के ऊपर इतनी डिपेंडेंस कर ली कि वो हमारे को डिक्टेट कर पा रहा है। और ये रियलाइजेशन हमारा ही नहीं है, आप चाहे यूरोप को लें, जापान को लें, साउथ कोरिया को लें, सभी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने यूएसए के ऊपर जो डिपेंडेंस की, कि यूएस मार्केट पे जो डिपेंडेंस की, उसका उन्हें खमियाजा उठाना पड़ रहा है। सेम थिंग कनाडा के साथ, सेम थिंग कनाडा के साथ देखिए, कनाडा क्या बोल रहे हैं वो कि भाई हमने जो इनके पास अम्ब्रेला ले ली इनकी, और इनका सारा ट्रेड हमारा उनके साथ में है, तो उसका हम नुकसान उठा रहे हैं। अब वो सब क्या कर रहे हैं? दे आर डाइवर्सिफाइंग अल्टीमेटली, वो भारत भी कर रहा है। तो ये जो है, हम उस जो गलतियां की हैं, और इसमें एक कहूँगा मैं गलतियां की हैं, उसका हमें
वो तो ये तो ओवरनाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये वी हैव टू लिव विद दैट। ये बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि हम सब ने अमीर होने के लिए जिस रास्ते को अपनाया था वो रास्ता गलत जगह चला गया। यूरोप इसी से त्रस्त, कनाडा इसी से त्रस्त, जापान त्रस्त, साउथ कोरिया त्रस्त, भारत त्रस्त, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डॉलर बेस्ड इकोनॉमी होते चले गए, व्यापार में उसी को महत्व देते चले गए। जापान और साउथ कोरिया के तो हाल बहुत ज़्यादा बुरे हैं। अभी जापान ने अपनी पॉलिसी में बड़ा चेंज भी कर दिया है कि अब तो हम वेपन बना के बेचेंगे। साउथ कोरिया बहुत ही उकसाया हुआ घूम रहा है। जर्मनी ने जो हाल किए हैं, और मतलब ये अपने आप में दिखाता है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसी वजह से कार्नी साहब ने उठाया भी था शब्द कि आने वाला समय जो है वो अमेरिका डिफाइन नहीं करे, उस तरफ बढ़ना होगा। तो उसमें समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है, मतलब इस बात को अगर मैं कंक्लूसिव रिमार्क की तरफ लेकर चलूं, निश्चित ही भारत को इस बारे में विचार करने की आवश्यकता अब आ पड़ी है। ट्रंप ने सोचने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि शुरुआत में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, अमेरिका दुनिया भर के लिए एक ऐसा संरक्षक कंट्री बनकर आया कि मैं दुनिया को ओपननेस सिखाऊंगा, कैसे होती है, व्यापार कैसे होता है, ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है। लेकिन अब वही अमेरिका जब अपने ही सिद्धांतों से पलटने निकल पड़ा, तो जो अमेरिकी कंपनियां कभी निकली थी, अब वो उपनिवेश की फीलिंग दिलाती हैं कि साहब आप हमारे अपने क्षेत्र बन चुके हो, आप हमारे हिसाब से चलोगे। खैर, अमेरिकी नीतियों में परिवर्तन हुआ है, तो रिएक्शनरी पॉलिसीज बदलते समय भारत जैसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था देश हैं ये विचार जरूर करेंगे, लेकिन ट्रंप के चलते चलते नहीं कर लेंगे, क्योंकि बनने में जब 80 साल लगे हैं इन पॉलिसीज को, तो हो सकता है अभी हम और वेट एंड वॉच करें कि भारत किस तरह की पॉलिसी अपनाएगा। इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं विराम देता हूं।